व्हाइट बोर्ड देख रहे हो आप लोग? देख पा रहे हो? यस सर। Okay. So we are going through weighted and non-weighted codes number system. Weighted and non-weighted codes. So we have already seen that the examples of weighted codes are what? BCD, Yes, BC. hexadecimal, octal, 84, 8421, 2421, 421, 2421. decimal, Yes, decimal or binary, binary. Okay. और कुछ पढ़ा है हमने? इतना ही सर। अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर वेटेड कोड्स, ओके। अब अगर नॉन वेटेड कोड्स की बात करें तो नॉन वेटेड कोड्स क्या है? ग्रे कोड और ग्रे कोड और एक्सेस 3। ग्रे and XS3. Okay, so these two so previously we have seen all these weighted number systems, okay, and we have seen the conversion of one number system into another number system. Now we have to go through non-weighted codes, which are gray and XS3. So I think we have studied something about gray, that how we can convert a number that is let us say like 1101101. Okay, if this number is in gray, sorry, not in gray, in binary. If this number is in binary, then what is the gray of this number? This is the binary, and I want to find out the gray of this number. So can anybody tell me the answer? सर 101100111। Okay, so let me write it. It is 1 1 0 0 then 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1. 1 1। Okay, so how we have got this? So what I am doing, I am just copying the first bit. जो पहला bit था उसे as it is हमने लिखा। अब जो second bit हमने लिखा है, this is the XOR of these two bits. तो bit number 1 और bit number 2 का जब XOR करेंगे तो 1 और 1 का XOR आएगा 0, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो 1 है, इस 1 का इस 0 के साथ XOR करेंगे तो आएगा 1, इस 0 का इस 1 से XOR करेंगे तो आएगा 1, फिर इस 1 का इस 1 से XOR करेंगे तो 1 XOR 1 क्या होता है? 0। फिर इस 1 और 1 का XOR करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0। इस 1 और 0 का XOR करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और 1 0 और 1 का XOR करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1. Okay, so this is the process of getting a binary number into gray. Okay, similarly if we want to convert this gray, okay, so if we want to convert this gray into binary, then what we will do in this case? So let us see that again. What we want to convert this number into what?
again into binary. So what we will do in this case? What is the process? सर we मोस्ट will find सिग्निफिकेंट को एज इट इज लिखेंगे Yes, MS और फिर MSB को हम as it is लिखेंगे सर एक और लेंगे जो आएगा और लेंगे 1 और 0। यस, अब जो 1 आया इस 1 को इस 0 के साथ XOR करेंगे और तब जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखेंगे। तो 1 और 0 का XOR क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, नाउ अब ये जो 1 आया है इस 1 को इस 1 के साथ XOR करेंगे और रिजल्ट यहाँ लिखेंगे। तो 1 और 1 का XOR करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। फिर से 0 और 1 का XOR करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 और 1 का XOR करेंगे तो 1 आएगा। 1 सर। फिर 1 1 और 0 का XOR करेंगे और रिजल्ट यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 again this again 1 again it should be 1 here 1 1 0 0 and this 0 will get XOR with this, we will get 1 So you can observe now that this result and this result both are same, क्योंकि हमने क्या किया, बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट किया, फिर उसी ग्रे को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, so the result should be same. Okay, now second is the XS3. So XS3 क्या है? XS3 क्या है? It is 3 more than the digits. What is happening? XS3 अगर बोले तो XS3 क्या है? XS3 is the 3 more than the given number. Okay, जैसे हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल 5, तो 5 का XS3 क्या होगा? एक्सेस नाम से ही पता चल रहा है, एक्सेस मतलब स्पेलिंग यहाँ गलत लिख दिया मैंने, यहाँ सी भी होगा, EXCSS एक्सेस। सो 3 ऐड करेंगे इसमें तो हमें क्या मिलेगा? 8। सो 5 का XS3 क्या होगा? 8 होगा। ओके, सो इन द सेम वे इफ वी वांट टू राइट द XS3 ऑफ लाइक 14, सो व्हाट विल बी द XS3? सो हम क्या करेंगे, इसके हर एक डिजिट में 3 ऐड करेंगे, मतलब +3 यहाँ भी करेंगे और +3 यहाँ भी करेंगे। ओके, सो वी विल हैव 7 4। ओके, so this will be the XS3 of this particular number. Okay, so binary 3, we add, what we do, we add binary 3 to each and every digit of the decimal number. Okay, so now let me share the PDF. सर Yes, सर ये नॉन वेटेड कैसे है सर, ये दोनों? just wait for a minute. Just wait for a minute. Where is that?
let the PDF to open. Okay, so we are going through the access 3 number. Okay. Let me share the PDF. Are you able to see the PDF? No, sir. Okay. Is it visible? Yes, sir. Now it is visible. Okay. So yes, we have. Okay, so we have access 3 and gray code as the non-weighted codes. Okay. So here in this case, what we have seen that I am taking the access 3 access 3. Okay. So हमने एक नंबर क्या लिया अभी, लाइक कोई भी एक डिजिट का नंबर अगर हम लेते हैं, लाइक 4. ओके, 1 digit number. So in this 4, if we want the access 3 of this number, so if this is the decimal, and if we want this in access 3, that is like this access 3 हमने शॉर्ट में इसे ऐसा लिखा. So now what is that number? नहीं दिख रहा सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा सर. स्क्रीन आप लोगों को नहीं दिख रहा है? पीडीएफ वाला स्क्रीन दिख रहा है सर. दिख रहा है सर. So are all of you, are you able to see the PDF? Yes sir. Yes sir. कोई है जिन्हें कि पीडीएफ नहीं देख पा रहे हो? ओके, सभी को दिख रहा है थी. तो यहाँ पर 4 में क्या करते हैं, 3 ऐड करेंगे तो we will have 7. Okay, now in binary how we can represent it? So this 4 can be represented in 4-bit binary. Okay, so let us represent this 4-bit binary. 4 को 4-bit binary में कैसे लिखेंगे? 0 1 0 0. Is it okay? So now in binary form, if we want to find out the access 3, then what we will do? We will add 3. So we will add binary 3. Okay, what we will do? We will add binary 3. तो 3 को binary में कैसे लिखेंगे? Is it 3 1 1 0 0 1 1. Okay, so we will add these numbers. So what we will get? 1 1 1 0. Okay, is it okay? Now Yes sir. 5. This is the rest. Sir, if we take 9. Yes, Sir, if we take the number 9. yes, if we take the number 9, then what is the access 3 of this number? Plus 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 12. access 3. अब यहाँ पर 9 का बाइनरी लिखते हैं, कितना होगा? 1001. यस, इसमें बाइनरी 3 ऐड करें, बाइनरी 3 मीन्स 1 1 ऐड करें तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 1 0
carry 1 1 1 0, again carry 1 1 and 1. Okay, so this is 12. You can see that this is 12. So this is the exercise 3. अभी हमें कोई एक नंबर है लाइक 957. ओके, सो 957 का एक्सेस 3 निकालना होगा क्या? तो क्या करना होगा, इसके हर एक डिजिट में क्या करना होगा, 3 3 ऐड करना होगा. अगर इसके हर एक डिजिट में 3 3 ऐड करेंगे तो हमें वो नंबर्स क्या क्या मिलेगा, नंबर्स हमें मिलेगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो मिलेगा 10, इसमें 3 ऐड करेंगे तो मिलेगा 8, और इसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 12. 12 सर. Okay, now we want to show in the form of 0 and 1. So this 957 can be written as 9 का बाइनरी क्या होगा, 1 0 0 1. 5 का क्या होगा, 0 1 0 1. और 7 का क्या होगा, 7 का 0 1 1 1. 0 1 1 1. अब तीनों में हम बाइनरी 3 ऐड करेंगे, मतलब प्लस 1 1 यहाँ भी ऐड करेंगे, प्लस 1 1 यहाँ भी ऐड करेंगे, और प्लस 1 1 यहाँ भी ऐड करेंगे. तीनों को ऐड करें तो क्या आएगा नंबर्स, 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 और 0 1 1. ओके, और यहाँ 1 1 0 कैरी 1, तो यहाँ 1 आएगा. ठीक है. In the same way we can write here that 1 and 1 0 carry 1 1 1 0 carry 1 1 1 0 carry 1. So 1 should be here, and 1 1 0 carry 1 1 1 0 carry 1 and 1. Okay, so this is the exercise 3 of this number. ठीक है. तो यहां पर हम अगर देखें तो दिस इज नॉट अ वेटेड कोड. व्हाई इट इज नॉट अ वेटेड कोड, व्हाई इट इज नॉट अ वेटेड कोड, क्योंकि यहाँ पर प्लस 3 जब हमने ऐड कर दिया तो वो सीक्वेंस जो है वो गड़बड़ हो गया है. मतलब देयर विल बी नो एनी वेइंग प्रिंसिपल जो कि हम एक कॉमनली इस्तेमाल कर सकें. क्योंकि अभी सर आप ऐड कैसे, क्या ऐड कैसे किए, 1 1 0. तो ये एडिंग, ये तो जस्ट सिंपल एडिशन है. लाइक मान लें 1 0 1 1 एक डाटा है और दूसरा डाटा यहाँ 1 1 है, तो इसे ऐड करते हैं हम कैसे, 2 बिट्स का. अभी हम इसके बाद हम बाइनरी एडिशन पढ़ेंगे. ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ. 1 1 0 1 और 1 को जब भी ऐड करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है और एक कैरी होता है. ठीक है, इसलिए हमने कैरी को यहाँ लिख दिया ऊपर. नाउ दिस 1 प्लस 1, इस पहले 1 और दूसरे 1 को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट 0 मिलेगा और एक कैरी मिलेगा. तो कैरी को हमने यहाँ लिख दिया, और जो यहाँ 0 आया था उस जीरो में हमने फिर 1 ऐड किया तो हमें रिजल्ट यहाँ 1 मिलेगा. ठीक है, और यहाँ कैरी मिला. नाउ दिस 1 इज गेट एडेड विद दिस 0, सो वी विल हैव अ 1 एंड वी विल हैव अ 1 हियर. ओके, तो ये कितना था, ये कितना था, कितना होगा ये 11 1011 कितना 11 11 होगा. 11. 11 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, 14. तो क्या ये 14 है, यस सर. ये 14 है. ठीक है, सो नाउ लेट अस मूव फर्दर. यहाँ पर सर एक मिनट. हाँ सर ये नॉन वेटेड कैसे, वो एक बार फिर से बता दीजिएगा ना सर, नहीं समझ में आया. एक मिनट. देखो यहाँ पर जो ये नंबर है, यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, दिस इज द this is decimal, this is BCD and this is XS3. ओके, तो यहाँ पर जो आप नंबर्स देख रहे हो, क्या वेट्स हम सभी का इस केस में क्या एक बोल सकते हैं,
यहाँ पर ये XS3 है, ये 0 और 1 के फॉर्म में जरूर दिख रहा है, बट यहाँ पर क्या किया हुआ है, 3 ऐड किया हुआ है, तब ये नंबर आया है. So we cannot say a particular weight of all these positions. सर लेकिन हम लोग जो वेट निकालते थे उसमें तो 2 to the power 0, 2 to the power 1 इस टाइप में निकालते थे ना, तो उसमें जो रेशियो आता था वो 2 आता था. ठीक है, Just wait for इसमें भी अगर हम यहाँ वेट्स लिख देते हैं 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 और 2 to the power 3, अगर हम यहाँ वेट्स लिख देते हैं तो ये इंस्टीड ऑफ XS3 ये तो बाइनरी ही हो गया. Obviously we are writing this value as 3. अगर ये हम इसका वैल्यू अगर लिखें तो वो 3 ही आएगा बेस्ड अपॉन जो एडिशन हम कर रहे हैं. लेकिन अगर हम इंटरनली देखें तो एक्चुअली दिस इज नॉट बाइनरी, दिस इज द XS3 ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर. दिस इज द XS3 ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर. यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को. ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को. ओके इज इट ओके? सर वो तो समझ में आ गया सर. तो अभी क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है सर कि What I am telling, what I am telling that all of these numbers, what they are showing, actually these are not those numbers. ये actually क्या है? This is representing 0, this is representing 1, and this is representing 2. Instead there is addition of +3. So यहाँ पर ये जो 0 0 है, इस पर्टिकुलर नंबर में जो यहाँ का वेट है और यहाँ का वेट है, वो पर्टिकुलर हम लोग जो एडिशन करके यहाँ भी दिखा दे रहे हैं वही चीज, बट इन दिस केस दिस विल नॉट बी वेटेड. ये जस्ट एक ऐसा नंबर है जिसमें कि 3 हम ऐड कर रहे हैं जब हमें दूसरा नंबर मिल जा रहा है. Okay, let us see another thing. The self-complementary code. So what is this? So you have to understand this language, that in this code, the ones complement of XS3 code is the XS3 code for 9's complement of corresponding decimal number. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये जो लैंग्वेज है थोड़ा सा ट्रिकी है, but you have to understand that in this code the ones complement of XS3 code of XS code. Okay, so हम क्या करें, XS3 कोड का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें. सो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर भी लिखा है दैट इफ वी हैव 2, ओके, if we have a number 2, okay, so what is the XS3 of this number? सर 5. और वो कैसे आएगा, मतलब 2 का जो बाइनरी हम यहाँ लिख देते हैं, दैट इज 0 0 1 0, और इसका XS3 कितना होगा 5, दैट इज 0 1 0 1. Okay, XS3 code for 2 is this. अभी इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लें, किसका, XS3 कोड का वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ XS3 कोड. ये XS3 कोड मिला, दिस इज द XS3 कोड. इस XS3 कोड का हम क्या करें, वंस कॉम्प्लीमेंट लिखें. तो व्हाट इज वंस कॉम्प्लीमेंट?
सर 0 को 1 कर देना और 1 को 0। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट लाइक हमारे पास कोई नंबर है 1011, तो इसका जब वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा? 1 के जगह में 0 और 0 के जगह में 1। ओके, सो दिस इज दी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। इन द सेम वे यहां पर अगर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या होगा? 1 0 1 0 ये होगा। अभी ये जो 1010 निकाले हैं इसका डेसिमल क्या है? 10। 10। ना अभी यहां पर हम देखें इन दिस कोड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सेस 3 कोड is the access 3 code for 9th complement of corresponding decimal number। मतलब क्या हुआ? अभी ये जो हमारा नंबर था 2, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 9th कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? 9th कॉम्प्लीमेंट, 9th कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई एक नंबर लें 4, तो 4 का 9th कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 9th कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उन दो नंबर्स को ऐड करके 9 आना चाहिए। ठीक है, तो 4 में कितना ऐड करेंगे तो 9 आएगा? 5। 5। So 5 is the 9th complement of 4. Okay. Now, if I am telling the 9th complement of 25, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 2 में कितना ऐड करेंगे तो 9 आएगा? 7। और 5 में कितना ऐड करेंगे तो 9 आएगा? 4। ओके, तो 74 इज द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। मतलब 99 में से 25 माइनस करेंगे तो ये जो नंबर आएगा दैट विल बी द 9th कॉम्प्लीमेंट। अभी एक और एग्जांपल लें, लाइक 357, सॉरी 357, तो इसका 9th कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 642। 642। इसका हमें क्या करना है? 9th निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 6 हो जाएगा, 4 होगा, 2 होगा। तो 9th कॉम्प्लीमेंट समझ में आ रहा है? सो यस सर। अभी जो ये नंबर है हमारे पास, इस नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 7। 7 होगा। ओके, और ये जो नंबर है ये क्या है? 10। 7 और 10 में क्या रिलेशन है मुझे ये बताएंगे? क्या ये है? 7 का एक्सेस 3 10 है या नहीं है? यस सर। 10 है। तो यहां पर कहा क्या गया कि द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सेस 3, हमने क्या किया? पहले एक्सेस 3 निकाला और उस एक्सेस 3 का, ये एक्सेस 3 हमें मिला, इस एक्सेस 3 का हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। ओके, व्हाट वी हैव डन, वी हैव फाइंड आउट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सेस 3। तो ये एक्सेस 3 था, एक्सेस 3 का हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। अब ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट मिलता है एक्सेस 3 का, वो उस नंबर के 9th कॉम्प्लीमेंट का एक्सेस 3 होता है। क्लियर है? सर फिर से रिपीट कीजिए। ओके, लेट अस डू इट अगेन। तो दो वैल्यू एक ही आ जा रहा है मतलब। मैंने क्या कहा? सर फिर से। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या है? सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड वैसा कोड है जिसमें किसी नंबर के एक्सेस 3 का वंस कॉम्प्लीमेंट, किसी नंबर, यहां पे नंबर 2 है, 2 के एक्सेस 3 का वंस कॉम्प्लीमेंट। फिर से देखें,
2 के एक्सेस 3 5 है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट यहाँ है, हाँ? तो 2 के एक्सेस 3 का वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब ये नंबर, मतलब 10, ये क्या है? ये उसी नंबर के 9th कॉम्प्लीमेंट का एक्सेस 3 है। 2 का 9th कॉम्प्लीमेंट 7 और 7 का एक्सेस 3 10। गॉट इट और नॉट गॉट इट? ओके, सो हम इसे फिर से पढ़ें। इन दिस कोड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सेस 3 जो कि हमें यहां मिला 10, इस 2 का ये क्या है? वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सेस 3, ठीक? ये 10 क्या है? 2 का एक्सेस 3 निकाले और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट किए तो 10 मिला, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सेस 3 of that number is excess 3 code for 9th complement of corresponding decimal number। corresponding decimal number मतलब 2। चलो कोई एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? ओके, लेट अस टेक वन अनदर एग्जांपल। लाइक मान लें कोई नंबर है 9, ठीक है? तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या कहता है? सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड कहता है कि 9 के वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सेस 3, 9 के एक्सेस 3 का वंस कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? मुझे बताएं कोई। 9 के एक्सेस 3 का वंस कॉम्प्लीमेंट 9 के एक्सेस 3 का वंस कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? सर 0101। आपने क्या कहा? 0101। चेक कर लेते हैं। तो 9 का पहले एक्सेस 3 निकालें, कितना होगा? 12। 12 होगा एक्सेस 3। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, कितना होगा? 8 और 4 12 100। 100। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें, कितना होगा? 0011। 0011 आया, 0101 कहाँ आया? यस सर। तो हमने क्या कहा कि 9 का क्या करना है? 9 के एक्सेस 3 का वंस कॉम्प्लीमेंट। तो 9 का एक्सेस 3 यहां हमें मिला, ठीक है? 9 का एक्सेस 3 ये है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला, ठीक है ना? तो एक्सेस 3 ऑफ, सर इसका 9 कैसे निकलेगा? सॉरी, नॉट 9 कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, सॉरी। हमने क्या किया? वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सेस 3 निकाला, मतलब एक्सेस 3 नंबर निकाला, मतलब 9 + 3 हमने किया तो 12 आया। 12 का बाइनरी, 12 को हमने बाइनरी में लिख दिया, ठीक है? तो अब उस बाइनरी का हमने क्या किया? वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो एक्सेस 3 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं, ठीक है ना? एक्सेस 3 का क्या निकाले हैं? वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक? अब मुझे बताए कि 9 का 9th कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? सर 90 सर। सर 0। 9 का 0 9th सर। कॉम्प्लीमेंट 0 होगा ना, क्योंकि 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। तो इसका 9th कॉम्प्लीमेंट 0 है, ठीक है? 9 का 9th कॉम्प्लीमेंट 0 है। नाउ अभी यहां पर ये क्या है? ये 0 है। हमारे पास नंबर क्या है? नंबर क्या है?
9 9 9 का 9 कॉम्प्लीमेंट 0 है। अब हम क्या देख सकते हैं कि इस 0 का एक्सेस 3 कितना है? 3 0 0 1 1 इसका एक्सेस 3 कितना आएगा? 0 0 1 1 आएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल है? यस सर। तो मैंने क्या कहा कि वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सेस 3 ऑफ एनी नंबर will be equal to the excess 3 of the 9th complement of that number। यही कहा मैंने, हमने जो प्रोसेस किया वही मैंने कहा। so this type of codes are known as self complementary code। ठीक है, यहां पर फिर से पढ़ लें एक बार। ये नीचे कैसे आएगा भाई? where is that? Select ओके। तो यहां पर अभी देखें तो क्या लिखा है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड का डेफिनेशन, दैट इन दिस कोड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सेस 3 कोड इज द एक्सेस 3 कोड फॉर 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर। जो डेसिमल नंबर था उसी के 9th कॉम्प्लीमेंट का एक्सेस 3 होगा। ओके, एक्सेस 3 कोड ऑफ 9th कॉम्प्लीमेंट। तो एक्सेस 3 कोड, this is the access 3 code of that number। access 3 code 9th complement of access 3 code। ठीक है ना, access 3 code के 9th complement का वो जो नंबर होगा that will be the same। so this type of number is known as the self complementary code। अब इसे self complementary code क्यों कहते हैं, let us see। देखें यहां पर